Students, today I will teach you from your book and I will take first chapter of SST, that name is When, Where and How. Beta, in this book we will cover time period of 700 CE to 1700 CE and all this period is known as medieval period. इस पूरे पीरियड को हम medieval period कहते हैं. तो in 7th class we will study about medieval period of India. इंडिया के medieval period के बारे में हम बात करेंगे. In 6th class you have already learnt about ancient history. In 7th class you will learn about medieval period and in 8th class you will study about modern history. Beta, 700 CE to 1200 CE, this period is known as early medieval period, and then start from 1200 CE to 1700 CE is known as late medieval period. Beta, this is the timeline of our medieval period. Warm up beta. The study of Indian history has been broadly categorized into ancient period, medieval period and modern period. In the previous class you learnt about the ancient period. In this class you will learn about the medieval period, which stretched from the early 8th century in India till the end of the 8th century. About ancient period you have learnt in your 6th class. Medieval period you will learn in your 7th class and modern period you will learn in your 8th class. और जो हमारी medieval history का time period है वो 8th century to 18th century. Now we will learn more about medieval period. The period which lies between the ancient and the modern period of history is called medieval, which means the middle. जो एंशियंट हिस्ट्री और जो मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का जो टाइम पीरियड दैट इज़ कॉल्ड मेडिवल एंड मेडिवल मीन्स मिडल यानी कि बीच का. द 8th century saw many political, cultural, social and economic changes in the life of the people. These changes did not take place all of a sudden at any particular period of time. Some of the changes appeared earlier at some places and some quite later. जो हमारा मेडिवल पीरियड है वो 8th सेंचुरी स्टार्ट होता है और इसके अंदर हमने बहुत सारे पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक चेंज को देखेंगे. और ये जो चेंजेस है वो अचानक से नहीं हुए हैं, स्लोली इन्होंने ये जो इंसिडेंट है ये हैपन हुए हैं. मेडिवल पीरियड 700 to 1700 CE is further divided into two periods, the early medieval period and the late medieval period. मेडिवल पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज़ अर्ली मेडिवल पीरियड एंड सेकेंड इज़ लेट मेडिवल पीरियड. नाउ वी विल लर्न अबाउट अर्ली मेडिवल पीरियड. द अर्ली मेडिवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम टू 8th टू द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी. इट मीन्स 8th से लेकर जो 13th तक का टाइम पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड अर्ली मेडिवल पीरियड. अब इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो 8th to 13th सेंचुरी के बीच में जो डायनेस्टीज़ इंडिया पर रूल करती हैं वो हैं द पालास, गुजर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड द राजपूत्स वर द पावरफुल डायनेस्टीज़. बेटा डायनेस्टीज़ मीन्स होता वंश दैट रूल्ड ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड. दिस पीरियड was dominated by struggles for power among regional kingdoms of both northern and southern India, which led to be frequent rise and fall of kingdoms. Dominated means beta to be more powerful than others. It means ये जितनी भी डायनेस्टीज़ थी आपकी पालास, गुजर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटास, चोलास एंड राजपूत्स, ये सभी डायनेस्टीज़ आपस में स्ट्रगल करती रहती थी. और स्ट्रगल किसके लिए होता था? अपने आप को मोर पावरफुल बताने के लिए. और ये दोनों पार्ट में, इंडिया के दोनों पार्ट में, नदर्न यानी कि जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का वहाँ भी और सदर्न जो इंडिया का साउथ पार्ट है वहाँ भी. तो ये सभी डायनेस्टीज़ अर्ली मेडिवल पीरियड में रूल करती थी और आपस में ही स्ट्रगल करती रहती थी, जिसकी वजह से
इसमें से कभी कोई हार जाती थी या कभी कोई जीत जाती थी। तो इसी तरह से ये फ्रीक्वेंट कभी किसी डायनेस्टी का राइज हो जाता, राइज मीन्स उदय, और कभी किसी किंगडम का फॉल हो जाता था, यानी कि वो हार जाती थी। The late medieval period extended from the middle of the 13th century to the 18th century। जो उसके बाद अर्ली मेडिवल पीरियड में तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, पालास, चोलास, राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास एंड राजपूत, इन 5 डायनेस्टीज़ के बारे में हम अर्ली मेडिवल पीरियड में पढ़ेंगे। देन आफ्टर हमारा जो लेट मेडिवल पीरियड है उसमें हम स्टडी करेंगे फॉरेन इन्वेडर्स की, यानी कि जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वो इंडिया में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लेट मेडिवल पीरियड में हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 13 to 18th सेंचुरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर अ नंबर ऑफ इन्वेशन। इन्वेशन मीन्स होता है बेटा आक्रमण, अटैक। इन्वेशन मीन्स अटैक फ्रॉम सेंट्रल एशिया बाय द मुस्लिम। जो सेंट्रल एशिया है, जो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट है, उसकी सेंट्रल से बहुत सारे मुस्लिम्स, द तुर्क, द अफ़गान एंड द मुगल्स, ये सभी क्या करते हैं, अटैक करते हैं इंडिया पे। दीज इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मीन्स अटैकर, क्योंकि इन्होंने हमारे इंडिया पर अटैक किया है तो ये क्या हो गए, अटैकर। इन्वेडर्स मीन्स अटैकर। कनकर्ड, कनकर्ड होता है जीतना, विन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, और इन्होंने इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जीत लिया। देयर वर ऑल्सो मैनी वॉर्स बिटवीन द इन्वेडर्स एंड द रीजनल पावर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और दैट टाइम जब इन्होंने अटैक किया तो हमारे नॉर्थ में और साउथ में बहुत सारे रीजनल किंग थे जो रूल करते थे, उनके साथ इनकी वॉर हुई, लड़ाई हुई। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ इन इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मीन्स होता है चेंज और कंट्रोल समथिंग बाय द इस्लामिक कस्टम, यानी कि जो इस्लाम का जो कस्टम है, जो रिवाज है, वो इंडिया के अंदर एंटर कर गया उस टाइम। अंडर देयर रूल ऑल दीज थिंग्स टुगेदर लेफ्ट एन इनडिलाइबल मार्क ऑन द इंडियन कल्चर। और ये सब जो इन्वेडर्स थे इंडिया के ऊपर, इन्होंने अटैक किया तो उन्होंने इंडिया का बहुत सारा पार्ट जीत लिया, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। क्योंकि डैट टाइम जो हमारे रीजनल डायनेस्टीज़ थी वो आपस में लड़ती रहती थी और आपस में लड़के वो वीक हो गए थे, जिसका फ़ायदा किसने उठाया, इन फॉरेन इन्वेडर्स ने, यानी कि जो बाहरी आक्रमणकारी थे इन्होंने उठाया। और जिसकी वजह से इन्होंने जितने भी रीजनल्स रूलर थे उनको ईजीली हरा दिया, और जिसकी वजह से इस्लामिक जो कस्टम था वो इंडिया के अंदर आ गया। और इनडिलीबल होता है बेटा, मीनिंग इज़ गिवन है परमानेंट। और जो इस्लाम था, जो मुस्लिम कल्चर था, इस्लाम कल्चर था, वो इंडिया के अंदर परमानेंट अपनी छाप छोड़ गया, जो आज तक भी है, आज तक भी इंडिया में प्रेजेंट है, वो इंडिया से नहीं गया है। बेटा मूविंग फर्दर, लेट्स टेक अ शॉर्ट रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड। वी हैव लर्नड अबाउट डेफिनेशन ऑफ मेडिवल पीरियड। Medieval means middle, it means we are studying about middle time period of ancient and modern period. Then medieval period divided into 2 parts. First is early medieval period and next is late medieval period. In early medieval period we will study about the Palas, Gujjar Pratiharas, Rashtrakutas, Cholas and the Rajput dynasties and their struggle. And late medieval period we will learn about foreign invasions, यानी कि जो बाहरी आक्रमण हुए थे इंडिया पे वो, जिसमें कि सेंट्रल एशिया के थे, फॉर एग्जांपल तुर्क, अफ़गान, मुगल्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे और कैसे उन्होंने इंडिया को कनकर किया। कनकर मीन्स कैसे उन्होंने इंडिया को जीता, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, द चेंजिंग नेम ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया के नेम है वो कैसे चेंज होते गए, कितने सारे नामों से हम इंडिया को जानते हैं। इंडिया हैज़ बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स सिंस एंशियंट टाइम। प्राचीन समय से, ओल्ड टाइम से इंडिया को अलग अलग नामों से जानते हैं। इन द मेडिवल पीरियड द लैंड ईस्ट टू द रिवर इंडस वॉज ऑफन कोल्ड हिंदुस्तान, यानी कि जो हमारी इंडस रिवर है उसका जो ईस्ट पार्ट है, डैट पार्ट इज़ कॉल्ड एज हिंदुस्तान, उसको हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। द लैंड ऑफ द हिंदूस, यानी कि जिस लैंड पर हिंदू रहते हैं। द टर्म हिंदू वॉज पॉसिबली यूज्ड बाय द अरब्स ऑफ द अर्ली मेडिवल पीरियड टू रेफर टू द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। और ये जो टर्म हिंदू है, पॉसिबली मीन्स ऐसा माना जाता है कि जो अरब के लोग थे
उन्होंने अर्ली मेडिवल पीरियड में जो यहाँ के लोग थे उनको हिंदुस्तान के लोगों के नाम से रेफ़र किया है उनको। इट वॉज़ रेफर टू एज आर्यवर्त और द लैंड ऑफ आर्यन इन एंशियंट टाइम। और जो हमारा एंशियंट टाइम था यानी कि मेडिवल पीरियड से पहले, उसके अंदर हमने इंडिया को आर्यवर्त और जो लैंड ऑफ आर्या यानी कि जहाँ पर आर्य रहते हैं उसके नाम से जाना है। और जो ये लैंड ऑफ आर्यन कहा गया, ये किसके थ्रू कहा गया है? महर्षि पतंजलि के थ्रू। द बुद्धिस्ट कोल्ड इट जम्बू द्वीप। जो बुद्धिस्ट थे, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने इंडिया को जम्बू द्वीप कहा है, विच मीन्स द आइलैंड ऑफ रोज़ एप्पल ट्री। बेटा रोज़ एप्पल ट्री इज़ अ फ्रूट नेम, यानी कि वो आइलैंड जहाँ पर रोज़ एप्पल ट्री उगते हैं, डैट इज़ कॉल्ड जम्बू द्वीप। जैन अवेस्ता, ये एक सेक्रेड मीन्स होते हैं बेटा होली। होली मीन्स पवित्र किताब। किन की पवित्र किताब है ये? जैन अवेस्ता। द सेक्रेड मीन्स पवित्र, बुक ऑफ द पारसीज, जो पारसी लोग थे उनकी एक प्रसिद्ध या पवित्र, जैसे हमारी रामायण है, गीता, वो हमारी सेक्रेड बुक है, ऐसे ही जो पारसीज थे उनकी जो सेक्रेड बुक थी जैन अवेस्ता, उसके अंदर मेंशन किया गया इंडिया एज सप्त सिंधु। इंडिया को सप्त सिंधु के नाम से कहा है। और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, यानी कि इंडिया के अंदर 7 रिवर्स बहती हैं। इंडिया वॉज कॉल्ड इंडोई बाय द ग्रीक विच मीन्ड पीपल ऑफ इंडस। और जो ग्रीक पीपल हैं उन्होंने इंडिया को इंडोई कहा है। इट मीन्स जो इंडस रिवर के उधर रहने वाले लोग हैं। इंडियाज़ प्रेजेंट नेम इज़ ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द इंडस रिवर। जो इंडिया का प्रेजेंट नेम इंडिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? जो हमारी इंडस रिवर है उससे लिया गया। इट वॉज नोन एज भारतवर्षा ड्यूरिंग द ऋग वैदिक काल। और जो हमारा एंशियंट टाइम, जो एंशियंट पीरियड था बेटा, उसके अंदर आपने ऋग वैदिक एज पढ़ चुके हो, उसके अंदर इंडिया को भारतवर्षा के नाम से जाना गया है। इंडिया वॉज ऑल्सो नोन बाय द पीपल हु लिव्ड अलोंग द सिंधु और द इंडस रिवर। इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो। द वर्ड सिंधु बिकेम इंडे इन फ्रेंच एंड फाइनली इन इंडिया इन इंग्लिश। इट मीन्स जो हमारा इंडिया, हमारे भारत का नाम जो इंडिया रखा गया है वो हमारी इंडस रिवर से ही रखा गया है। द पीपल लिविंग ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द रिवर केम टू बी कोल्ड हिंदूस, यानी कि जो हमारी इंडस रिवर है उसके ईस्ट पार्ट में जो लोग रहते हैं उनको क्या बोला गया? हिंदूस, यानी कि हम। द टर्म हिंद एंड हिंदुस्तान वर इन यूज़ आफ्टर द इस्लामिक कंक्वेस्ट होता है बेटा विजय करना, एन एरिया ऑफ लैंड डैट हैज़ बीन टेकन इन अ वॉर, यानी कि लड़ाई के टाइम किसी जगह को जीत लेना, किसी लैंड को जीत लेना। अभी मैंने आपको बताया था कि 13 to 18 सेंचुरी में जो हमारे फॉरेन इन्वेडर्स थे, यानी कि जो अटैकर थे, वो इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने हमारे इंडिया का काफ़ी सारा पार्ट कनकर कर लिया था, यानी कि जीत लिया था, यानी कि लड़ाई में जीत लिया था। तो उन्होंने हिंदुस्तान रेफ़र किया था, यानी कि वो जब मेडिवल पीरियड में आए तो उन्होंने हिंदुस्तान, इंडिया को हिंदुस्तान कहा। द 11th सेंचुरी बट लेटर ऑन द रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल बिगेन टू कॉल इट हिंदुस्तान।